Switch on your videos, all of you. Everyone, keep your videos on. Let's wait for a minute for other students. Good morning, all of you. Okay, first of all, keep your cameras on, everyone, just so that I can identify whether the students are of our school only or not. Just switch on your cameras. Better just hold for a second. I'm coming.
Okay, so let's start then. Class 7A and 7C will continue the revision of exercise 20A. Okay, continue your revision of exercise 20A. Class 7B, we have to do question number 8 of exercise 20A. Okay. Start with question number exercise 20A. Question number 8. The question is, the length and breadth of a rectangular piece of land are in the ratio 5:3. There is a rectangular piece of land. The ratio of length and breadth of the rectangle is given 5:3. That means you will assume that the length is 5x and the breadth is 3x. Length is 5x and breadth is 3x. Okay, let us assume this. Now what? Now the total cost of fencing is rupees 24 per meter is rupees 9600. Total cost of fencing is given. Now fencing की cost given है, that means we will have to find the perimeter of this rectangle. Fencing कहाँ पर करते हैं? We do the fencing on the boundary of any field or shape, whatever shape it is. We do the fencing on the boundary. तो क्या करेंगे यहाँ पर? We will find the perimeter because we are talking about fencing. What is the perimeter of this rectangle? Perimeter is equal to 2l plus 3. This is the formula. So 2 into 5x plus 3x. That means 2 into 8x. 5x plus 3x is equal to 8x. 2 into 8x, that means 16x. So this is the perimeter. ये हो गया पेरीमीटर आपका. अब फेंसिंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी? फेंसिंग का जो रेट है दैट इज गिवन. व्हाट इज द रेट गिवन? रुपीस 24 पर मीटर इज द रेट ऑफ फेंसिंग. The rate of fencing is rupees 24 पर मीटर. 1 मीटर की जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट है रुपीस 24. ओके, तो टोटल फेंसिंग कितने मीटर करनी है हमें? दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो टोटल हमारा जो पेरीमीटर है वो 16 मीटर है. इतनी पूरे में एरिया में इतने पूरे लेंथ पर आपको फेंसिंग करनी है. दैट मीन्स आप क्या करेंगे? 24 जो कि रेट है फेंसिंग का रुपीस 24 फॉर 1 मीटर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको मिल जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी आपकी? 16x into 24. 16x into 24. This is the cost of fencing. कितना आएगा? सिंपलीफाई करके तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 24 into 16. What is the product? 16 into 4. 64. 32. 32 plus 6. 38. 386. Sorry, 384x. This is the cost of fencing. ये आ गया आपकी. अब ये आपको गिवन है. This cost of fencing is already given. कितने गिवन है? 9600 रुपीस के.
The total cost of fencing is 9,600 rupees. ये आपको given है. Okay. So with the help of that, you can find the value of x. Cost of fencing is already given. कितनी है? 9,600. और यहाँ क्या है पूरा लॉजिक क्वेश्चन का, आपको पहले की लेंथ और ब्रेथ का मैं स्टार्टिंग से बताऊँ. लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो गिवन था, जिससे मैंने लेंथ लगा दी है 5x और 3x. लेंथ हो गई 5x, ब्रेथ हो गई 3x. पेरीमीटर फॉर्मूला लगाया, निकाल लिया. फेंसिंग करनी है यानी कि पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर इज 16x. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया हमने पेरीमीटर. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x हमने पेरीमीटर निकाल लिया व्हिच इज 16x. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलती है? यू मल्टीप्लाई द पेरीमीटर बाय द रेट. रेट को अगर मैं पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी. रेट कितना गिवन है? ₹24 पर मीटर का. तो 24 को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यू गेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 384x. अब ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है. कितनी है? 9,600. सो 9,600 equals to 384x. इसके इक्वल पुट कर देंगे and you simplify this, you will get the value of x. X is equal to 9600 upon 384x. मैं यहाँ पर क्या करूँगा? Going to cut the two numbers by 24. दोनों को 24 से डिवाइड करना. तो यहाँ पर 24 से काटने के बाद आएगा 16x. 24 से काटे 16x हो जाएगा. न्यूमरेटर में 24 से काटेंगे तो मुझे 400. ओके, इसके बाद सॉरी x बता दूं, x लगाया यहाँ पर मैंने. x नहीं आएगा, सॉरी. 5,600 upon 384. 24 से कट कर दिया हमने, 400 upon 16 आया. So that is x is equal to 15 से 400 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपको? 25. 25 is the value of x. अब x की वैल्यू से you can find the length and breadth. Length equal to 5x. x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कितना आएगा? 125 मीटर. 125 मीटर is the length and breadth कितनी हो गई? 75 meter is the breadth. Clear? Now if you have any doubt in this you can ask. बताइए. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a doubt in 7th question. बेटा 7th question you can ask later. पहले मुझे इसमें बताइए if you have. Okay, sir. Sir, why we have found the perimeter of this 12 plus b? बेटा माइक पहले तो हवा मारना बंद करूंगा. फाजिल म्यूट योरसेल्फ. Sir, एक मिनट रुको बेटा, मैं पहले उसकी क्वेरी का आंसर दे दूं. हाँ जी, और पूछिए क्या पूछना है बताओ. फाजिल बताओ. अच्छा okay, sir. Sir, after we have find the answer, my answer is 25. But sir, and after that I multiplied with L plus B. So मतलब कि 5 into 25, sir, it's showing my answer 125, and then B1 is 3 multiplied by 25, sir, it's showing 75 meters. समझ में नहीं आ रहा मुझे. अरे फाजिल, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे So wait for a while. Wait for a while. I think it's a network issue. नहीं नहीं, you tell me what are you telling. क्या क्या बताना चाह रहे हो? सर आवाज सही आ रही है? हाँ, आवाज सही आ रही है आपकी. मुझे ये बताओ, आप कुछ पूछना है या कुछ बता रहे हो? सर बता रहा हूँ सर. इसमें मतलब कि मुझे ये पूछना है सर कि
L से B L को L और B की 25 से मल्टीप्लाई करनी है ना, मतलब कि 5 और 3 की। 5 को 25 से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 into 25 125 मीटर आ जाएगा और 3 into 25 75 मीटर आ जाएगा। ये पूछ रहे हो? यस सर। हाँ जी, नैतिक पेरीमीटर क्यों फाइंड करा यहाँ पे? Yes, sir. And perimeter answer this 9600 is equal to 384x. Sir, why we have done this? देखिए आपको फेंसिंग की कॉस्ट यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में। फेंसिंग की कॉस्ट, फेंसिंग कहाँ पर करते हैं हम? बॉर्डर पे करते हैं। कोई भी फील्ड हो उसके बॉर्डर में फेंसिंग करी जाती है। तो ऑब्वियसली हमें पहले उस फील्ड का पेरीमीटर पता, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलती है? आप उसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर की मल्टीप्लाई आप, आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. हाँ, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को आप रेट ऑफ फेंसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट कितना दे रखा है? ₹24 24. पर मीटर, ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ₹24 पर मीटर लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. पेरीमीटर आपने निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाले, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू एग्जैक्टली तो पता नहीं है कितनी है, इसलिए हमारा पेरीमीटर एक्स के टर्म्स में आया। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करने के लिए आपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया पेरीमीटर, ठीक है, ये आ गया। Okay, sir. Yeah. उसके Okay, sir. बाद हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन थी, कितनी गिवन थी? 9600 क्वेश्चन में देखिए गिवन है 9600। Yes, sir. उसकी हेल्प से हमने 9600 को, ये जो पेरीमीटर ये जो निकाली हमने कॉस्ट, ये कॉस्ट और 9600 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसके इक्वल लगा दिया। मेरी बात समझ में? Okay, sir. तो सॉल्व Yes, करके sir. आपको x मिल गया, कितना मिला? 25। 25. आपने लेंथ ऑफ ब्रेड्थ बताइए, समझ में आ गई? So, sir, in the book it is given only like ऐसे ही अंदाज, sir. In the book it is only just given by मतलब, What? sir, Find in the book 9600, sir, what this is given? This is cost of fencing, वो तो इक्वल लगाया मैंने, cost of fencing कॉस्ट को मैंने 384x के इक्वल पुट कर, ठीक है? Okay, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, let's move on to the next question. Question number 9. Find the length of the largest pole that can be placed in a hall. 10 meter long, 10 meter wide and 5 meter high. एक रूम है, उसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें गिवन है। लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 5 मीटर, ये तीनों चीजें आपको गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर इस रूम के अंदर जो मैं लार्जेस्ट पोल या फिर लार्जेस्ट रॉड जो फिट कर सकते हैं उसकी आपको लेंथ निकालनी है। मैंने आपको जब फॉर्मूले नोट कराए थे तब मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट रॉड का मतलब क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ रूम, रूम की जो डायगोनल होती है उसी को बोलते हैं लार्जेस्ट रॉड। यानी कि आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? आपसे डायगोनल पूछ रहे हैं कि क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो डायगोनल आपको फाइंड करना है। लेंथ इज 10 meter, length is given 10 meter, breadth is again given 10 meters, and height of the room is given 5 meters. तो यहाँ पर क्या है? Find the length of the diagonal या फिर longest rod, longest pole, एक ही बात होती है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखिए फॉर्मूला मैंने नोट कराया है, डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल। This is the diagonal of a room.
10 square plus 10 square plus 5 square. 10 square plus 10 square plus 5 square. So diagonal is equals to under root 100 plus 100 plus 25. Okay, 100 square is sorry 10 square is 100, and then 5 square is 25. Now diagonal equals to root 225. If you know by 225. Square root of 225 factors करके find करेंगे आप क्या आएंगे फैक्टर देखिए क्या आए फैक्टर्स 3 into 3 into 5 into 5. These are the factors of 225. So एक पेयर आपका 3 का बन गया यहाँ पर एक पेयर 5 का बन गया तो b equals to 3 into 5 रूट हटा दिया देखिए मैंने अंडर रूट का साइन हटा दिया 3 into 5 एक बार लिख देंगे that means diagonal equals to 15 meters 15 मीटर की diagonal आ गई clear हाँ देखिए clear okay next question नोट कर लीजिए जल्दी से okay let's move to the next question Question number 10. Find the area of a square each of whose ये बेटा आप अपने आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 देखिए 11 is also very simple find the area of a square the length of whose diagonal is 72 centimeters स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है एरिया फाइंड करना है आप क्वेश्चन 10 you have to do on your own homework
11. Find the area of a square, the length of whose diagonal is 72 centimeters. So, in the first part of the question, the diagonal of the square is given 72 centimeters. आपको square का area find करना है. Area का formula होता है. With the help of diagonal also you can find the area of a square. Formula is area equals to, please note down the formula. It is important. Area of a square is equal to, with the help of diagonal also हम find कर सकते हैं. क्या होता है? The formula is b square upon 2. B square upon 2. This is the formula of area of a square. Diagonal जब हमें दी होती तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. जब साइड दी होती तो क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, वो फॉर्मूला होता है. और जब डायगोनल गिवन है तब ये वाला फॉर्मूला d स्क्वायर अपॉन 2. स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है. So area is equal to d square. What is the value of d? 72. So 72 into 72 on 2. Because आपको फाइंड करना है 72 into 72 upon 2. 72 से 5 into 2 से 36 into 72. Product निकालिए इसका and get the answer. Yes, tell me what is the product? Find करके बताइए. What is the product of 72 and 36? Sir, 2592. So 2592. Sir, 2592. 2592. Okay, so Sir, 2592 2592 centimeter square. Answer. centimeters square is the answer. Okay. Sir, I also find the answer of 10th. So it's 72.25 meter square. Answer. 7th B वाले जो बच्चे हैं ध्यान से सुनिए. 2.88. आपका 5th पीरियड में मेरा ही है. आपकी क्लास में 7th B मतलब ABC तीनों ही है मेरा. 5th पीरियड फिर से है मेरा. एंड देन जो आपका लास्ट पीरियड होता है 0 पीरियड 7th B में, वो वाला पीरियड मैं लूंगा मैथ्स का. ओके, लास्ट पीरियड. तो आप लोग एब्सेंट मत होइएगा. कल भी जो बच्चे फर्स्ट पीरियड अटेंड किया था, जिन्होंने सेकंड अटेंड नहीं किया था, मैंने उनको एब्सेंट मार्क किया. सिर्फ जो वही बच्चे प्रेजेंट लगाऊंगा जो दोनों पीरियड्स में प्रेजेंट होंगे 7th B के. सुन लीजिए ध्यान से. सेकंड पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. अपने आप ट्राई करिएगा. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस. Answer of फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. एरिया गिवन है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है. यही फॉर्मूला यूज होगा. Question 12. The area is 16,200. Area is equals to 16,200 meters square. 16,200 meters square is the area of a square. आपको diagonal की लेंथ फाइंड करनी है. The wall of Okay, so same formula we will use for this. 16230 equals to d square upon 2. Okay, तो यहाँ पे आएगा d square equals to 16230 multiplied by 2. Diagonal is मिलेगी आपको. So d square equals to, what is the product?
32400. So D equals to square root of 32400. You all know how to find the square root. आप सबको अब आ गया है square root find करना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. The answer is 180 meters. 32,400 का स्क्वायर रूट होता है 180. Okay. So diagonal is 180 meters. Question number 13. The area of a square field is half hectare. Find the length of its diagonal in meters. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 13th. आप होमवर्क में करेंगे. बस एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, हाफ हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है. हिंट में भी दिया हुआ है आपको, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. यानी कि हाफ हेक्टेयर कितना होगा? 5,000. 10,000 का हाफ कर दीजिए, 5,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो एक तरीके से एरिया आपको गिवन है 5,000 मीटर स्क्वायर. बुक में चाहे तो मार्क कर लीजिए उसको, मैं जो बोल रहा हूँ. एरिया कितना हो गया? 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया स्क्वायर का. और आपको डायगोनल फाइंड करना है. बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही काम करना है. बस एरिया आपका पहले हेक्टेयर्स में दिया हुआ था. हेक्टेयर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एरिया. अब आप हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे. कैसे करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर देंगे, यानी कि 5,000 मीटर स्क्वायर आ रहा है. Okay, to do this in homework. Question 14. The area of a square plot is 6,084 meters square. Find the length of the wire which can go 4 times along the boundary of the plot. एक स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, उस स्क्वायर की आपको पेरीमीटर पहले निकालना है. फिर पेरीमीटर निकालने के बाद एक वायर की लेंथ निकालनी, कितना वायर उसमें यूज होगा, so that it can go 4 times around the boundary. बाउंड्री पे 4 बार लपेटना है आपको. तो यानी कि पेरीमीटर फाइंड करने के बाद आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर किसी फील्ड के 4 बार मुझे राउंड लगाने हैं, 4 बार लपेटना है वायर को, तो यानी कि आई विल फाइंड द पेरीमीटर एंड आई विल मल्टीप्लाई बाय 4. ये करना है. So first of all, with the help of area, we will find the side, and side की जब से पेरीमीटर निकालेंगे, फिर पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है. So let us first find the side of the square. Area equals to कितना गिवन है? 6,084 meters square. Okay. 6,084 meters square is the area. Now you have to find the side of this square. The side square equal to क्या होता है? Area होता है. Area का फॉर्मूला क्या होता है? Side square. वो आपको कितना गिवन है? 6084. Side square equal to 6084 पता है आपको? तो that means side कितनी आती है? Side equal to square root of 6084. Can you find the square root of 6084? Find करिए जल्दी से. Factors करेंगे, देखिए पहले 6084 के factors करेंगे.
So factors are 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13. These are the factors of Z084. यानी कि स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? देखिए 2 का एक पेयर आ रहा है, एक पेयर 3 का आ रहा है और एक पेयर 13 का आ रहा है. सबको एक एक बार लिख लीजिए. 2 into 3 into 13. So this means the side is 6 into 13, which is equal to 78 meter. This is the side of the square. अब आपको साइड मिल गई है स्क्वायर की, इसके बाद पेरीमीटर निकालिए, खुद निकालिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो लेंथ ऑफ वायर आपको मिल जाएगी. Length of wire 4 into perimeter, 4 multiplied by perimeter. Perimeter कितना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into साइड. ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, लेकिन मुझे 4 बार लपेटना है, तो इसलिए मैंने 4 से फिर से मल्टीप्लाई कराया. ओके, 4 into साइड कितना होता है? So find the product and write the answer on your own. Find the product on your own. बताइए कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, लेंथ ऑफ वायर आपको मिलेगा. Sir, 1248. 1248. Yes, sir. 1248. 248. 248